Good morning to all of you. Myself Nitin Chaudhary, nursing tutor, Index Nursing College. Today my topic discuss CAD, coronary artery disease. आज हम CAD के बारे में जानेंगे. CAD क्या होता है? Introduction. A disease in which there is a narrowing or blockage of the coronary arteries, blood vessels that carry blood and oxygen to the heart. CAD is usually caused by atherosclerosis. Atherosclerosis, a buildup of fatty material and plaque inside the coronary arteries. The disease may cause chest pain, shortness of breath during exercise, and heart attack. The risk of CAD is increased by having a family history of CAD before age 50, older age, smoking tobacco, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, lack of exercise, and obesity. Also called also called called coronary artery disease and coronary heart disease. मतलब इंट्रोडक्शन ये नेरो एंड ब्लॉकेज, हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी में, या तो एलईडी हो या तो आरसी हो, ब्लड वेसल्स टू कैरी ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सही से. सीएडी यूजुअली कोजेज बाय अर्थरोसिस, ए बिल्डिंग ऑफ फैटी मटेरियल. जो फैटी मटेरियल होता है प्लेग, उसमें प्लेग हो जाता, मतलब वो आरसीए आर्टरी या एलईडी आर्टरी में प्लेग बंद हो जाती. वो इनसाइड द कोरोनरी आर्टरीज द डिजीज़ में कोजेज चेस्ट पेन होने लगता है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लगती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. हार्ट अटैक भी आ सकता है उसमें. द रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकती है सीएडी इंक्रीज बाय द हैविंग फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है. ऑफ सीएडी बिफोर एज 50, ओल्डर एज मतलब 15, ओल्डर एज मतलब अधिकतर लोगों में 15 एज तक ओल्डर एज में भी होता है, या फिर स्मोकिंग या तंबाकू खाने से, स्मोक करने से. देन हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है आपका. देन कोलेस्ट्रॉल बना होता है, ज़्यादा तेल या इनकी फ्राई करी हुई सब्ज़ी खाने से. डायबिटीज़ पेशेंट को भी हो सकता है. लैक ऑफ एक्सरसाइज and obesity, also called coronary artery disease and coronary heart disease. Then definition: coronary artery disease defined as CAD refers to narrowing of the coronary artery, the blood vessels that supply oxygen and blood to the heart. It is also known as CAD. It is a major cause of illness and death. ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता हार्ट सही से, नस अपनी चौक हो जाती है, प्लेग हो जाता है, उसमें बंद हो जाने से तीनों लेयर जो बंद हो जाती, ट्रिपल वसल से जो बंद हो जाती है तीनों लेयर में प्लेग हो जाता, तो सप्लाई ऑक्सीजन नहीं कर पाता हार्ट, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बॉडी को, तो उससे मेजर कोजेस, उसका कारण ये डेथ भी हो सकता है. देन कोजेस, क्या क्या कोजेस हो सकते हैं, क्या क्या कारण है इसके. कोजेस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स. These are called risk factor, non-modifiable causes as gender more than 55 years. Male and in females are more after menopause, have high risk of CAD. Heredity, ethnicity, people of African or Asian are of high risk. Content modifiable factor: smoking, diabetes, excess body weight, especially around waist, high blood pressure, abnormal blood cholesterol level, lack of regular exercise, stress level, डिप्रेशन. क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें, या तो जेंडर, ज़्यादा ओल्डर एज को भी हो सकता है. देन हेरिडिटी, इथिसिटी, पीपल अफ्रीकन एशियन, हाई रिस्क. देन स्मोक करने से, डायबिटीज़ से, एक्सरसाइज, बॉडी वेट, ज़्यादा वेट अगेन करने से, एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है, स्पेशली अराउंड वेस्ट,
then blood pressure, abnormal blood cholesterol, lack of regular exercise, then exercise, stress level, and then depression. आदमी ज़्यादा सोचेगा तो ज़्यादा उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है. then sign and symptoms. Sign and symptoms. CAD usually have no symptoms for several years during its early stage. Eventually, the disease progress until the symptoms of angina or heart attack occur. These symptoms can be experienced during activity or rest. Chest pain or a feeling of heaviness in a chest pain in arm, neck or low content, shortness of breath, sweating, nausea, heart palpitations, irregular heartbeat, loss of consciousness in women. Early signs include fatigue, sleep disturbance, SOB, इंडिकेशंस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी. क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? तो इसमें इंसान को नींद नहीं आ सकती है, फैटिग हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद ख़राब होना, देन चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में बार बार पेन होना, एंजाइटी होना, घबराना, एंड इनरेगुलर हार्ट बीट, या तो ब्रेडिकार्डिया हो जाना है, ट्रेकिकार्डिया, तो वो भी इनरेगुलर हार्ट बीट में उससे भी सिम्टम्स होते हैं. या शॉर्टनेस ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है. फिर स्वेटिंग हो सकती है, उसे नोजिया भी हो सकता है. देन डायग्नोसिस देखते हैं. ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विथ हार्ट रिदम और साइंस ऑफ ए हार्ट अटैक. ECG to identify problem with heart rhythms or signs of a heart attack. TMT, treadmill test, to measure how well the heart functions when changed to work harder during exercise. Then normal nuclear perfusion imaging to identifying the area of the heart that are receiving less blood contact. Echocardiogram to determine volume of the blood pumping by heart. CT, coronary angiography, to identify the blockage in the arteries in the heart. Cardiac characterizations, to identify the blockade or restrict arteries. Blood test complaint, hemographs increase TLC count, suggestions of infection, cardiac marker, troponin, CPKMB, troponin I3, CPKMB. क्या क्या डायग्नोस हो सकती है? इसको डायग्नोस अपन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, हार्ट रिदम को चेक कर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकते हैं, ट्रेडमिल पे चला के हार्ट रिदम चेक कर सकते हैं. मेजर हाउ विल हार्ट फंक्शंस व्हेन चैलेंज टू द वर्क हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज करवा के. न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग्स, देन इकोकार्डियोग्राम्स, इको करके LVF EF देख के हार्ट का फंक्शन पता चल जाता, टू डिटरमाइन वैल्यू पता चल जाती है उसकी ऑफ ब्लड पंप कितना कर रहा है या नहीं कर रहा है. CT, कोरोनरी एंजियोग्राफी, टू आइडेंटिफाई द ब्लॉकेज इन आर्टरीज. कार्डियक करेक्टराइजेशन से. देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवा के कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के इन्वेस्टिगेशन. कंप्लेंट हेमोग्राम से जैसे TLC काउंट सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन पता चल जाता है. देन कार्डियक मार्कर जैसे ट्रोपा या CPKMB में पता चल जाता है. देन मैनेजमेंट इंक्लूड मेडिकल्स प्रोसीजर एंड मेडिकेशंस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड exercise regularly. Medications include statins, lipid lowering agent, decrease the causes of developing cardiovascular disease, beta blocker to reduce blood pressures and heart rate. Then continue nitroglycerin patches, sprays tablet to control chest pain by reducing the heart damage
for blood by widening the coronary arteries, then angiotensin converting enzyme ACE inhibitors to lower the blood pressures and help to slow or stop the progression of CHD। मैनेजमेंट इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन, लाइफ स्टाइल चेंजेस हो सकती है, डाइट पे ध्यान दे सकते हैं, एंड एक्सरसाइज रेगुलर जो एक्सरसाइज करता है उस पर ध्यान दे सकते हैं। मेडिकेशन इंक्लूड हो सकता है इसमें, स्टेन लिपिड लोअरिंग एजेंट से डिक्रीज कोजेज बाय कार्डियो बीटा ब्लॉकर टेबलेट मेडिकेशन यूज़ हो सकती है ये, एंड मेडिकेशन फॉर्म में डॉक्टर ऑर्डर tablets from nitroglycerin patches, then chest pain by reducing the heart damage, blood by feeding coronary arteries। तो ये सब मैनेज कर सकते हैं मैनेजमेंट। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टू विद इन द कोरोनरी आर्टरीज allowing greater blood flow to the heart and reducing hypertension। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, सर्जिकल मैनेजमेंट कैन बी ओपन और रिप्लेस्ड आर्टरीज इन द ब्लड वेसल्स, उसमें आर्टरी सर्जरी हो सकती है, फिर उसमें ब्लड रिप्लेसमेंट आर्टरी रिप्लेस हो सकती है, ब्लड वेसल्स बिकम वेनी नैरो और इन if symptoms are not responding to the medication, symptoms are the not respond medication responding हो सकता, तो आर्टरी सर्जरी हो सकती है, आर्टरी रिप्लेस हो सकती है, लेज़र सर्जरी भी हो सकती है। दिस इन्वॉल्व मेकिंग सर्वाइवल इनथी holes in the heart muscles which encourage the formations of new blood vessels। लेज़र सर्जरी भी हो सकती है, होल करके मसल्स विच इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल चेंज हो सकता है। देन कोरोनरी बाईपास सर्जरी हो सकती है। द सर्जन्स यूज ए ब्लड वेसल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू ग्रेटर ए ग्राफ्ट दैट कैन बाईपास द blocked artery। The graft might come from the leg or an inner chest wall artery। या तो TVD हो तो पेशेंट की आप बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। बाईपास सर्जन यूज़ द ब्लड वेसल्स, देन पार्ट कट करके ग्राफ्ट, देन बाईपास ब्लॉक आर्टरी, जो ब्लॉक आर्टरी होती है उसे कट करके बाईपास राउंड शेप दे सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, नर्सिंग असिस्मेंट्स, हेल्थ हिस्ट्री असिस्ट फॉर चेस्ट पेन, फोकस ऑन द लोकेशंस, देन सेवेरिटी, then intensity, then during and onset, precipitating factors, exercise, stress and smoking, measure attempted to control pain, for example laying down, eating and drinking, using of antacid assist for another symptoms, indigestions, heartburn, nausea, abdominal pain, physical examination assist from the following posterior indicating chest pain, examples rubbing chest, leaning forward, change in vital signs, dyspnea, crackles, dysarrhythmias, leave of consciousness, vomitings। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, आप चेस्ट पेन फोकस कर सकते हो, आपकी लोकेशन फोकस कर सकते हो, देन ड्यूरेशन टाइम कर सकते हो आप, एंड देन प्रेसिपिटेशन फैक्टर्स, एक्सरसाइज या स्मोकिंग वो भी मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। स्ट्रेस हो जैसे चिंता, देन मेजर अटेम्प्टेड टू द कंट्रोल पेन, फॉर एग्जांपल लेइंग डाउन, ईटिंग, खाने पे ध्यान रखते हो, ड्रिंकिंग पे ध्यान दे सकते हो, यूजिंग ऑफ एंटासिड ध्यान दे सकते हो, असिस्ट ऑन अदर सिम्टम्स जैसे इन डाइजेशन, हार्टबर्न, नोजिया, वोमिटिंग पेन, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है, अल्टरनेट ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इम्बेलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, एज एविडेंस बाय एन इंक्रीज in respiratory rate goal, the patients will have normal respirations। Then nursing interventions assist the pattern and rhythms of breathing, check SpO2 level, place the patient in semi-flower positions, administer oxygen therapy, give medication and prescribed
chest pain related to inflammatory response of the arteries and evidence by patient rubbing the chest goal to relieve pain. Intervention place the patient in a position which he she feeling comfortable. Administer prescribe analgesics. नर्सिंग डायग्नोसिस में ऑलरेडी ब्रीथिंग पैटर्न्स चेक कर सकते हो आप, ब्रीथिंग पैटर्न क्या चल रहा है, इम्बेलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन चेक कर सकते हो। इन वो एविडेंस बाय द इंक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट चेक कर सकते हैं। गोल पेशेंट विल हैव नॉर्मल रिस्पायरेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन उसमें असिस्ट कर सकते हो आप, पैटर्न, रिदम, ब्रीथिंग चेक, SpO2 ऑक्सीजन लेवल, देन पोजीशन, देन ऑक्सीजन थेरेपी, गिव मेडिकेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड जा रही है नहीं जा रही मेडिकेशन। देन चेस्ट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स, क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है चेस्ट पेन इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टरीज एज एविडेंस बाय पेशेंट्स रबरिंग द चेस्ट गोल, द रिलीव पेन इंटरवेंशन प्लेस द पेशेंट पोजीशन, क्या पोजीशन हो सकती है, फीलिंग कंफर्टेबल ही या और सी या मेल हो या फीमेल कोई भी, एडवर्सन प्रिस्क्राइब द एनाल्जेसिक ड्रग भी दे सकते हो आप। देन प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, reduce the risk of CHD, restricted alcohol intake, avoiding tobacco, being physically active, consuming healthy diet, avoid fat food with added preservatives, limiting sugar and salt, complications of CAD, heart failure, dysrhythmia, then prescribed this cardiogenic shock, कार्डियोमेगली। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने पे ध्यान दे सकते हो, आपकी डाइट पे ध्यान दे सकते हो। देन रेसिस्टेंट एल्कोहल पे ध्यान सकते हो, ज़्यादा एल्कोहल से। देन अवॉइडिंग आप टोबैको या तो ज़्यादा तंबाकू खाने पे उस पर ध्यान दे सकते हो। बीइंग फिज़िकल एक्टिविटी, क्या क्या फिज़िकल एक्टिविटी, ये प्रिवेंशन सारे। कंज्यूम हेल्थ डाइट, अवॉइड फास्ट फूड विन एड प्रिवेंशन, लिमिटेड शुगर एंड साल्ट, ज़्यादा नमक खाने से ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CAD, हार्ट फेलियर। देन ये सारे प्रिवेंशन आप CAD पेशेंट को सावधानी रखनी चाहिए। देन माई टॉपिक क्लोज एंड थैंक यू to all of you.